दोबारा कश्मीर का मामला, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान क़याम अमन के लिए मसले कश्मीर का हल होना लाजमी है। भारत मौक़िफ़ ठुकराते हुए कहा कि अटूट अंग है, किसी को भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुपों में शामिल हजारों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती मुदाखलत करे, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के कॉलेज से तरक्की की दी मिसाल, कहा हालिया प्रोग्रामों ने जमीनी हकाइक को किया बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तकरीर के दौरान कहा, उन्होंने कश्मीर का मामला उठाया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान क़याम अमन के लिए मसले कश्मीर का हल होना लाजमी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उन्होंने न सिर्फ भारत पाकिस्तान के दरमियान बल्कि पूरे साउथ एशिया में अमन की फिजा के लिए कश्मीर का मामला हल होने की शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सभी ममालिक पर उन्होंने जोर दिया कि वो कश्मीर पर पास की गई करारदादों की अमल आवरी पर अपना रोल निभाए। To peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters and so-called cordon and search operations, and imposed collective punishments destroying entire villages. Access to occupied Kashmir, demanded by the UN High Commission for Human Rights and over a dozen special rapporteurs, has been denied by New Delhi. Mr. President, the UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. The UN Military Observer Group for India and Pakistan should be reinforced. Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic जहां पाकिस्तान ने मसले कश्मीर के हवाले से क़याम अमन की बात की है और कहा कि मसले कश्मीर का हल होना लाजमी है। अक़वाम मुत्तहिदा से जो ममालिक है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उनसे अपील की है कि जो करारदादें पास की गई है जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर उनकी अमल आवरी हो और जो ममालिक इसमें शामिल है वो अपना रोल निभाए। इधर भारत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ठुकराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट अंग है और इस का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामलात में किसी को भी मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे।
habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए अपने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मसरूफ हजारों तालीम याफ्ता नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत करने की दरखास्त करते हुए महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट में लिखा कि साल 2020 में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी अभी तक अपने नताइज पेश नहीं किए हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं उनको बेरोजगार किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि उनके रोजगार को बचाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जाती तौर पर इस मामले की मुदाखलत करे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज श्रीनगर में थे और श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर के हालात में बहुत बेहतरी आई है। हालिया दिनों में कश्मीर में कौमी सतह के कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स मुनाकिद कराना एक बड़ी मिसाल है जम्मू कश्मीर में अमन की। उन्होंने कहा कि 90 की दहाई के बाद कश्मीर में पहली बार इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो किए गए हैं जो खुद जो है अमन व कानून की जो मिसाल है वो बयान करती है। बात है लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें कई वर्षों से अब पत्थरबाजी की वारदात नहीं होती, उस तरह से रास्ते में चलते हुए एनकाउंटर नहीं होते। टूरिज्म का ये आलम है कि इस वक्त हाउस बोट भी भर गए और होटल भी। और वादी कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर होम टूरिज्म का कभी कल्चर नहीं था। ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था, मेघालय वगैरह में, यहाँ नहीं था। लेकिन पिछले बरस लोगों ने दरवाजे खोल दिए क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट आया और इस बार वो भी ख़त्म हो गया। होम टूरिज्म की भी गुंजाइश नहीं रही। तो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हिंदुस्तान जैसे वज़ीर आज़म मोदी कहते हैं कि अगले 25 वर्षों में एक दुनिया की एक ताकत बन करके उभरेगा और वो जो अगले 25 वर्ष का सफ़र है तरक्की का सफ़र, उसमें जम्मू कश्मीर की एक अहम भूमिका अहम रोल लेने वाला है। सर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जो डर रही है इलेक्शन कराने से, कि वो उनका डर है कि यहाँ पर हम कश्मीर सूबे के अंदर जो सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं वो अब अवामी राबता मुहिम चलाएंगे और गांव-गांव गली-गली जाकर जो सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं उनको अवेयर करेंगे, उन तक जम्मू कश्मीर की सियासत पहुंचाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के अंदर हुई। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर जगमोहन सिंह रैना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने बातें कही है उससे ऐसा लग रहा है कि एक और फ्रंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर के अंदर बनने की तैयारी में है। हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं जगमोहन सिंह राणा जी। इनसे ही जानना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और अवामी राबता मुहिम छेड़ने का असल मकसद क्या है। जगमोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने कहा कि जो सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं वो गाँव-गाँव जाएंगे
اور گلی گلی یا گھر گھر جا کر ایک بیداری مہم چھیڑیں گے. اس کا جواب جاننے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کافی وقت سے سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جموں کشمیر کے اندر سیاست کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, کیا آپ نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کیا ہے, چھوڑ دیا اپنی پارٹی کو؟ نہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پارٹی سے اوپر اٹھ کے ہیں, کیونکہ میں سب سے پہلے سکھ کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوں. آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے کشمیر میں کام کر رہی ہے, جس میں تمام سوشیو پولیٹیکل, ریلیجس, اکنامیکل اینڈ ادر گروپ جو ہیں ان سب کا ایک فورم ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے 30 سال کی جو یہاں ٹرموائل تھا اس کو فیس کیا, اور جموں کشمیر میں سکھ اپنے گھروں میں جڑے رہے, آل ایکسپٹ کہ صاحب وہ گاؤں میں جو 70% پاپولیشن جو رہتی تھی وہ وہاں سے اکھڑ کر شہر کی طرف آئی, ٹاؤنز کی طرف آئی, کیونکہ گاؤں میں حالات جو وہ ٹھیک نہیں تھے, اور وہ ایک لوکل مائگریشن ہمارا سکھوں کا ہوا تھا. اس کی وجہ سے ایک اکنامیکل کرائسس پیدا ہوئی, جس اکنامیکل کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے سرکار سے کچھ باتیں رکھی کہ صاحب ہمارے بچوں کی امپلائمنٹ, ہماری اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے, کیونکہ میکسیمم سکھ جو تھے ان کی اکانومی جو تھی وہ باغ تھے, زمینیں تھی, وہ سب ان سے 25-30 سال چھٹ گئی, اور ان کی وہ جو انکم تھی وہ اس میں چلی گئی, جس کی وجہ سے سکھوں کی جو مالی حالت ہے وہ خراب ہونی شروع ہو گئی. تو اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ سکھوں کی اکانومی کو ریوائیو کیا جائے. جگموہن سنگھ جی, میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ ایک سکھ کمیونٹی جو ہے وہ عوامی بیداری مہم چلائیں گے. آپ اپنی جو کمیونٹی ہے, کمیونٹی کے بیچ میں یہ پارٹی کے اندر بھی کر سکتے تھے, آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ سب کر سکتے تھے, اور جو اشارہ غالباً مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اربن لوکل باڈیز کے انتخابات ہونے والے ہیں, پنچایت کے انتخابات ہونے والے ہیں. کیا آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی اپنے نمائندے کھڑے کریں گے ان انتخابات میں؟ نہیں, ہم نے ایسے دیکھا, جو میں بات اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلے 70 سالوں سے سکھ مائنارٹی جو ہے یہ بڑی سکیٹرڈ ہے شہر اور گاؤں میں, اور یہ ایک چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں, پاکٹس ہیں ان کے, جیسے آپ ترال میں لے لیجئے, سری نگر میں لے لیجئے, بڑگام میں لے لیجئے, بارامولہ میں لے لیجئے, اور وہ ووٹ بینک جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے. بٹ ہم شروع سے, جیسے کہ تحریک شیخ محمد عبداللہ نے شروع کی, اس وقت سے آج تک ہم لوگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چلتے آئے ہیں, پر ہمارے ایشو جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہوئے. یہاں تک کہ آپ نے لیٹسٹ دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ڈی لمیٹیشن کمیشن آیا, اور اس نے یہاں پر ایک ڈیمارکیشن کی اسمبلی سیگمنٹس کی, پر اس کے بعد اس کا بیسک پریمبل تھا کہ صاحب اگر آپ کسی کو جو ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں تو اس میں اگر کسی مائنارٹی کو یا کسی کمیونٹی کو جگہ سپیس نہیں ملتی ہے بیکاز آف اسکیٹرڈ نیچر, then there is a reservation for that. بٹ انہوں نے اسٹیٹ گورنمنٹ نے, گورنر صاحب نے کشمیری پنڈتس کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کی اور سکھوں کو اگنور کیا. تو ہم لوگ جو ہے وہ کہا جائیں گے اپنی بات لے کر. یہ سب تو صحیح ہے, یہ سب تو مانتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے. ریزرویشن کے اندر آپ نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی کہ آپ کو جو حق ملنا چاہیے تھے نہیں ملا, پر کیا انتخابات میں آپ حصہ لیں گے؟ پنچایت کے انتخابات میں آپ کی جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, پنچایت انتخابات میں, اربن لوکل باڈیز انتخابات میں؟ نہیں, میں آپ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج تک یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری سپورٹ سے کئی اسمبلی سیگمنٹ میں کامیاب ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں نکارا ہے. بالکل, لیکن آج ہم انہیں نکار رہے ہیں. وہی تو میرا سوال ہے, آپ نکار رہے ہیں ایک الگ طریقے سے, آپ اب پارٹیسپیٹ کریں گے انتخابات میں, چاہے اربن لوکل باڈیز ہو, پنچایت ہو یا اسمبلی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نکارا, تو اپنی پارٹی میں رہ کر یہ سب ممکن ہے آپ کے لیے؟ نہیں, ویسا نہیں ہے. یہ سکھوں کا الگ معاملہ ہے. میرا اپنا پارٹی کے ساتھ ویسا کوئی ایک پالیسی کے ساتھ نہیں ہوں. میرا سکھوں کے ساتھ الگ ہے, اور میں ہمیشہ سکھوں کے لیے سب سے پہلے آیا ہوں, بعد میں کسی پارٹی کے ساتھ رہا ہوں. لیکن میں ابھی سائلنٹ ہوں اس پارٹی کے ساتھ, بیکاز میرے ایشو اس پارٹی نے بھی ٹیک اپ نہیں کیے. تو بٹ بات میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ سکھوں کے تمام علاقوں میں جائیں گے, ڈور ٹو ڈور ول گو ان آل دا سیگمنٹس, اور وہاں جا کے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ صاحب آپ لوگوں کا ووٹ پر کیسے ایکسپلائٹ ہوا, بٹ آپ کے ریزولوشن کیا ہوئے. آپ کو انہوں نے پنجابی زبان دی, آرٹیکل 370 کے جانے کے بعد ہماری پنجابی زبان کو اٹھا دیا. چلیے, ہمیں آپ بات نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم
हर ये जा रहे हैं लोगों के जगमोहन पास, सिंह जी, ताकि जगमोहन सिंह, इस पे दोबारा हम बात करेंगे जरूर, इस पे दोबारा हम बात जी। करेंगे क्योंकि वसी मौजूद है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तब बात करने के लिए। सिख जो है, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अवामी राबता मुहिम चलाई जाएगी जो कि सिख पॉपुलेशन वाले एरिया है वहां पे, क्योंकि आज तक हमने सरकारों का साथ दिया है पर जो मामलात हमारे रहे हैं उन मामलात की तरफ कोई पहुंचा भी नहीं, किसी ने मामलात हल नहीं किए हैं। हालांकि डिलिमिटेशन में भी हमें जो रिजर्व कैटेगरी में रखना चाहिए था नहीं मिला। इस वजह से हम सिख जो है अब एक अवामी बेदारी मुहिम चलाएंगे। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें क्या कुछ दिया और हमें क्या कुछ आगे करना चाहिए इसको लेकर। एक स्कूल के अंदर उस्ताद का रोल है कि वो बच्चों को तालीम दे, बच्चों को तालीम से रोशनास कराए और उनको आदाब जिंदगी सिखाए। पर पुलवामा के संगरवनी इलाके में उस्ताद ने एक नई ही मिसाल कायम कर दी। उस्तादों ने गालिबन एक आम शहरी को इतना जदकोब किया, इतना मारा पीटा और उन पर सलाखों से हमला किया उस आम शहरी पर, जिसका संजीदा नोटिस लेते हुए महकमे तालीम के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने 4 असातिज़ा साहिबान को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। और अवाम में भी इस मामले को लेकर काफ़ी गम गुस्सा है। बताया जा रहा है कि ये कोई जिस शख्स को मारा गया है उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो वक्फ की थी स्कूल को बनाते वक्त, और कल उन पर जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने हमला किया और उनको ज़ख्मी कर दिया, उनको ज़दकोब कर दिया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने इस मामले का संजीदा नोटिस लिया और फिलहाल 4 उस्तादों को जो है सस्पेंड किया गया है और कहा गया है कि इसकी तहकीकात चल रही है। जो भी असल हकायक सामने आएंगे उन हकायक को देखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। पूरे तौर पर हमने उनको सस्पेंड किया 4 टीचर्स को और इसकी इंक्वायरी होगी, क्योंकि कोई भी वाक़या होता है तो वो एक तरफ़ा नहीं होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाने के लिए थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। मैं उस एरिया में जाता रहता हूँ, मेरे नोटिस में ये बात नहीं है। दोनों पार्टियाँ जो वहाँ पर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं और जो वहाँ पर कोई दूसरे उसी जगह पर शेड में जो रहने वाले, इसमें बताया जाता है कि मुख्तार अहमद, दोनों में से किसी को भी ज़रूरत नहीं थी कि आपस में कन्फ्रंटेशन करते, लड़ाई करते। दोनों में से किसी ने भी ये बात हमारे नोट्स में नहीं लाई, जबकि मैं वहाँ उस एरिया में जाता रहता हूँ। इनको चाहिए था कि ये चीज़ मुझे बताई जाती या डिपार्टमेंट के किसी ZDO को या कहीं पे आपस में कंप्लेन हो जानी चाहिए थी। टीचर्स ने जो किया हम किसी तरह भी इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी इंस्टिगेशन हुई होगी, क्योंकि खामखा में कोई क्यों छड़ी किसी पे उठाएगा। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि टीचर जो है स्कूल का वो एक नमूना होता है, वो एग्जाम्पल होता है। उनको कभी भी ये ज़ेब नहीं देता है कि वो अपने हाथ में, अपने बच्चों के लिए भी कोई छड़ी नहीं उठा सकते हैं, चाहे जाए कि वो लोहे का डंडा उठाएं और स्कूल के अंदर ऐसा वाक़या हो। इसकी जो भी वजह हो, मैं इसको टीचरों के हक़ में यही कहूँगा कि टीचरों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उनको ऐसी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करनी चाहिए कि जिसका नेगेटिव मैसेज आता है। इधर ललदर अस्पताल श्रीनगर के बाहर पालपोरा बडगाम से आए हुए लोगों ने धरना दिया और उन्होंने अस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उनका नवजायद बच्चा जो LD हॉस्पिटल में था, कल उनकी मौत वाक़ा हुई है और डॉक्टरों की गफलत की वजह से जो उनका नौनिहाल मौत की अवधि नींद सो गया। इल्ज़ाम ये लगाया कि डॉक्टर्स ने जो उनको एडवाइस किया था वो एडवाइस सही नहीं रही और फिर कुछ मामलात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से उनके नौनिहाल बच्चे की मौत वाक़ा हुई और फिर जिस तरह उनको ट्रीट करना चाहिए था उस तरह नहीं किया गया। पहले जो लवाकिन है जो वहाँ पे आए थे धरने में, उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद जो इंतज़ामिया है वो क्या कुछ कह रहे वो भी आप तक पहुँचेंगे। पहले लवाकिन की बात आप ज़रा सुनिए। से एक ही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो गया। बच्चा मेरा वो गुजर गया, वो अब वापस नहीं आएगा। अगर हम कुछ भी करें वो आप मीटिंग बुलाएं, इस मीटिंग का क्या फायदा? इन्होंने बोला हम मीटिंग बुलाएंगे, हम अब देखेंगे इस मीटिंग में क्या होगा। हमारे पेशेंट है उधर, उसको निकाला है अब बाहर, वो उसको बोला है MLS में जाओ, उसको घर ले जाओ, उसको और भी 2 दिन ही होगी। चलो अब हम बोलते हैं हमें इंसाफ चाहिए।
पुलिस के पास गए थे आप? पुलिस के पास हम गए थे, हमने FIR उधर दर्ज की। तो आज क्यों आपके पेशेंट को कहाँ बाहर निकले? टाइम हो गया है या? हाँ, ये बोला टाइम हो गया, ये बोला छुट्टी है तो ले जाओ उसको। अब हम निकलेंगे घर के बाद फिर ये क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि ये लोग निकल गए तो ये फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। हम बोलते हैं इंसाफ, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। तो आप भी मानते हैं ये इन्वेस्टिगेशन पर नहीं होती है कभी? कहाँ होगी? जब हमको निकालेंगे बाहर, घर निकालेंगे तो फिर मैंने SSO साहब से अपील की है, मैंने उसको अपना नंबर भी दिया था, मैंने उसको बोला था जब भी मीटिंग होगी मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं मीटिंग में सामने होना चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है क्या कौन सा इंसाफ होगा। अगर हमने डॉक्टर को बुलाया था उस टाइम, वो डॉक्टर नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? फिर जब उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज किया, फिर SSO साहब आया, SSO साहब ने किसी को भेज दिया, तो फिर वो डॉक्टर आया सामने। उसने पहले बोला कि मैंने देखा नहीं इस बच्चे को। जब मैंने उसको बोला अगर आपने नहीं देखा तो फिर CCTV कैमरे चेक करो, निकालो, फिर उसने बोला हाँ मैंने देख लिया। पहले बोला मैंने नहीं देखा, फिर बोला मैंने। हमारी सिस्टर यहाँ पिछले 8 दिनों से हैं, तो फिर उसको आज मतलब कि परसों डिलीवरी थी, उसको अच्छे से डिलीवरी जब हो गई तो फिर बच्चा अच्छे से बाहर उन्होंने दिया, तो CTV उसको अच्छे से दी। उन्होंने बोला जाओ बच्चे को पकड़ो, तो हमने जब बच्चे को पकड़ा तो फिर उन्होंने 12 बजे हमको शिफ्ट किया है वार्ड में। जब हम वार्ड में शिफ्ट हो गए तो फिर बच्चा बहुत अच्छे से चल रहा, मतलब कि वो हंस रहा भी था बच्चा। हमने उसको दूध भी पिलाया था 2 दिनों अच्छे से, कोई मसला नहीं था, अच्छे से बिल्कुल डॉक्टर चेक कर रहे थे, कोई मसला नहीं था। और आज रात दोपहर को मतलब कि काम 1 हो गया, तो 12 बजे हमने जब उसको दूध पिलाया तो फिर वो अच्छे से मूवमेंट किए, दूध भी उसने अच्छे से पिया। चलिए, नवजायद बच्चे की लवाकिन बात कर रहे थे कि दुनिया में आने से पहले ही उनका नौनिहाल मौत की अब्दी नींद सो गया, पर आज ये हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। डॉक्टर क्यों गफलत करे, डॉक्टर क्यों गलत तरीके से एडवाइस करे? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ के बगैर कुछ नहीं चाहिए। इधर हमारे साथी फैसल रियाज ने यही मामला उठाया मेडिकल सुपरिटेंडेंट ललित अस्पताल से, और उनसे जानना चाहा कि क्यों डॉक्टर्स गफलत कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर की गफलत शायरी की वजह से आज एक बच्चा जो है वो अपनी नींद सोया। क्या कुछ मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं, हम आपकी नजर कर रहे हैं। ये जो मेरी डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी, मुझे भी उन्होंने इन्फॉर्म किया इन राइटिंग कि ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि ये जो बच्चे के पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं वो बोल रहे हैं कि नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। अब पहले तो मैं ये बोलूँ कि मेरे उस ख़ानदान के साथ, उस माँ बाप के साथ मेरा भी ये है कि आई कंडोलेंसेस मेरी तरफ से, तो उनका लगते जी का गुजर गया। उसके बाद क्योंकि जो ही मेरे पास ये शिकायत आई इन राइटिंग, तो मैंने एक कमेटी बनाई, बड़े सीनियर डॉक्टर्स को कमेटी में रख दिया, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम ये देखेंगे कि कहीं पर नेग्लिजेंस हुई है, तो जैसे भी मुझे रिकमेंडेशंस आती हैं एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो विल प्रोसीड इंशाल्लाह फर्दर। आई एश्योर मैं पेशेंट्स के अटेंडेंट या बच्चे के माँ बाप को या बाकी अटेंडेंट्स को भी एश्योर करता हूँ कि चलिए, तहकीकात तलब मामला है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एश्योर किया है कि सारे हकाइक सामने लाए जाएंगे, और अगर गिल्टी वाकई में डॉक्टर को पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।